وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، یہ دیوبندی مولوی جس کا نام عارف حقانی ہے، اس نے مجھ کو فون کیا اور فون کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا۔ میں نے کہا کہ تو مناظرہ کرے گا تو اپنا موضوع بھی بتا دے۔ تو اس نے یہ کہا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنے عقائد، اپنی عبارات اور اپنے ہم مسلک مولویوں کے نزدیک کافر ہیں۔ تو میں نے اس کا دعویٰ سنا اور اس کے دعوے پہ میں نے کچھ تنقیحات پیش کیے جس کی دفاع نہ کر سکا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دعوے پہ تنقیحات ہوتے ہیں اور اس کی دفاع مدعی نہ پیش کر پائے تو اس کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے، پھر وہ موضوع نہیں بنتا ہے۔ تو اس کا دعویٰ تھا مولانا احمد رضا خان کافر ہیں، اس کا دعویٰ یہی تھا۔ ماحصل یہ کہ مولانا احمد رضا خان کافر ہیں۔ حضرات اہل سنت، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے اکابرین کے نزدیک بھی مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کافر ہیں؟ تو اس نے یہ بات کہی کہ آپ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کو یہ ثابت کر دیجئے ہمارے علماء کے نزدیک کہ ساری تحقیق کے بعد بھی ہمارے علماء نے ان کو مسلمان مانا ہو، ان کے اوپر کفر کا حکم نہ لگایا ہو۔ میں نے کہا میں حوالہ دیتا ہوں، میں نے انہی کے گھر کی کتاب ہے ملفوظات کمالات اشرفیہ، اور یہ حوالہ اور بھی دوسری کتابوں میں موجود ہے جیسے قصص الاکابر، مجالس الحکمہ اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ ضرورت پڑی تو میں ان کو بھی پیش کر دوں گا۔ اس میں ایک عبارت ہے، ایک شخص نے پوچھا مولوی تھانوی سے کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے اگر نماز پڑھے تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس پہ مولوی تھانوی نے کہا ہاں ہو جائے گی، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اگرچہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے۔ حضرات اہل سنت، اس کے ضمن میں ایک حدیث شریف پیش کر دوں۔ حدیث یہ ہے، یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث شریف مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور اس حدیث شریف پہ ہر مکتبہ فکر کا اس پہ اتفاق ہے۔ اس حدیث شریف پہ ہر مکتبہ فکر کا اتفاق ہے، خواہ وہ سنی بریلوی مسلک ہو، خواہ وہ اہل حدیث مسلک کا ہو، خواہ وہ دیوبندی مسلک کا ہو، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، ہر مسلک کے لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں اس حدیث شریف پہ۔ اور کوئی کرے نہ کرے، لیکن جو میرا فریق مخالف مناظر ہے وہ اس حدیث شریف پہ اتفاق کرتا ہے۔ وہ حدیث شریف یہ ہے، اذ قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء به احدہما۔ حضرات اہل سنت، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو لوگوں میں سے کسی نے کسی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو جائے گا۔ مثلا جو تھانوی کی بات ہے، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تھانوی کے اوپر کفر کا حکم لگایا۔ حضرات اہل سنت، جب مولانا احمد رضا خان بریلوی نے جس بات کے تحت کفر کا حکم لگایا، اگر وہ بات تھانوی کے اوپر صادق آ جائے تو تھانوی کافر ہوگا، اور اگر وہ بات صادق نہیں آتی ہے تب وہ کفر لوٹ کر کے مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف آئے گا۔ یہ حدیث شریف کا ضابطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے مولوی تھانوی کو کافر کہہ دیا تو دونوں میں سے کوئی ایک تو کافر ہو گیا، یا تو مولوی تھانوی کافر ہوا یا نعوذ باللہ من ذالک مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف کفر لوٹ کر کے آئے گا۔ نقل کفر کفر نباشد، چونکہ یہ مثال ہے، مثال کی باتوں سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے۔ حضرات اہل سنت، اس اصول کے تحت جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہوگا۔ اب حضرات غور کریں آپ کہ اس میں مولوی تھانوی کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم انہیں کافر نہیں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جس بات کے تحت اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا، یا تو اس کا تھانوی نے اقرار کر لیا ہو،
ظاہر ہے، اور اگر اس کا اقرار کر لیا تو ویسے ہی کافر ہو گیا، یا تو یہ بات ہوئی، اور یا تو دوسری بات یہ ہے کہ جب مولوی تھانوی اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر مولوی تھانوی اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے تو جو شخص اس سے پوچھ رہا ہے، یعنی تھانوی سے پوچھ رہا ہے کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے اگر نماز پڑھے تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں، تو تھانوی اس شخص سے کہتا نا کہ مولوی احمد رضا نے میرے اوپر کفر کا جو حکم لگایا ہے اس حکم کے تحت ہم کافر نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ حکم جو ہے خود مولانا احمد رضا کی طرف پلٹتا ہے اور وہ کافر ہوتے ہیں، لہٰذا تمہاری نماز بریلویوں کے پیچھے کبھی نہیں ہو سکتی۔ یا تو اس کا اقرار کرتا، وہ یہ بات کہتا، لیکن ایسا نہیں کہا، اس نے کہا ہاں ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو حضرات اہل سنت جب اس تحقیق کے بعد، یعنی کہ کفر جب مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف لوٹ رہا ہے اور اس تحقیق کے بعد بھی ان کو مسلمان مولوی تھانوی مان رہا ہے، تو جب کسی کا کفر واضح ہو جائے اور اس کے بعد بھی اس کو اگر کوئی مسلمان مانے تو مسلمان ماننے والا تو خود بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ میں نے حدیث شریف کا ضابطہ پیش کیا، لیکن اس پہ اس مولوی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب میں نے اس سے یہ سوال پوچھا تو کبھی سیرت انوار مظہریہ کی بات کرتا، شاہ مولانا مظہر اللہ صاحب قبلہ نقشبندی کی کتابوں میں جاتا۔ حضرات اہل سنت میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جو اس کا مؤلف ہے، قدیم نسخے سے یہ بات نہیں ثابت کر پائیں گے یہ لوگ، جدید نسخے میں اس کا مؤلف کوئی اور ہے جو ہماری جماعت میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں کون اس کا مؤلف ہے، اس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اور ہماری جماعت کے لوگوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا، ہماری جماعت میں وہ معتبر نہیں ہے۔ یہ انوار مظہریہ کے جو مصنف ہے شاہ مظہر اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مفتی اعظم دہلی ہماری جماعت کے اکابرین میں ہیں۔ تو ان کے ہاں تو یہ تو ہمارے اکابرین میں ہے، لیکن ان کی کتابوں میں تالیف کرنے والا جو ہے وہ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، ہم انہیں معتبر نہیں جانتے، ہماری جماعت کے لوگوں نے انہیں معتبر نہیں مانا ہے۔ اس کا نام یہ ہے، میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو، اس کا نام کیا ہے، تالیف، ہاں دیکھیے، مفتی انوار مظہریہ مفتی اعظم پاک و ہند حضرت علامہ شاہ مظہر اللہ نقشبندی مجددی علیہ رحمہ، تالیف، دیکھیے تالیف کرنے والا کا نام بھی ہے الحاج محمد یونس باڑی مظہری ادیب فاضل ایم اے فارسی۔ یہ ہماری جماعت کا کوئی معتبر آدمی نہیں ہے، اس کے بارے میں پہلے ہی بتا دوں۔ کبھی یہ انوار مظہریہ کی طرف جاتا جس کتاب میں ان لوگوں نے گھسپیٹھی کی ہے، کبھی یہ انوار مظہریہ کی طرف جاتا، پھر کبھی یہ بھاگ کر کے جو ہے ادھر ادھر کی بات کرتا، کبھی پوچھتا مجالس الحکمہ کس سن میں کتاب لکھی گئی، پھر کہہ رہا ہے کہ ملفوظات آپ کے ہاں حجت نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ تو اپنے مولوی کے قول کو جھوٹا کہہ دے، پھر اس کے بعد میں اس کو دوسری کتابوں سے بھی میں ثابت کر دوں گا، کیونکہ یہی چیز قصص الاکابر میں بھی موجود ہے، یہی چیز ملفوظات کمالات اشرفیہ میں نے دکھایا ہی ہے، اور یہی چیز مجالس الحکمہ میں بھی موجود ہے۔ لیکن اس پہ یہ کہ کب یہ کتاب لکھی گئی، کب کیا ہوا، میں اس سے بار بار پوچھتا رہا، لیکن کبھی یہ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکا، اور پھر اس کے بعد یہ فون کٹ کر کے بھاگ گیا۔ حضرات اہل سنت شروع کی گفتگو میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ اس میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بات جو ہو رہی ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ جب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا انتقال ہوا تھا، اس انتقال کے وقت بہت سے لوگوں نے تعزیت نامہ پیش کیا، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے لیے تعزیت نامہ پیش کیا۔ اس میں دیوبند کے بھی علماء ہیں جنہوں نے تعزیت نامہ بھی پیش کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ حضرات اہل سنت جو دعائے مغفرت ایک کافر کے لیے، چونکہ کافر اس معنی میں ان کے نزدیک، ان دیوبندیوں کے نزدیک ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کافر کہتے ہیں، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کون ہے، جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو عام کرنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے کا نام حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرات اہل سنت جو ایک کافر کے مشن کو عام کرے، چونکہ دیوبندیوں کے نزدیک مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کافر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان کے مشن کو عام کرے گا وہ بھی کافر ہوگا، تو ان کے نزدیک حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ بھی کافر ہوں گے۔ تو حضرات اہل سنت اب جب ان کا انتقال ہوا تو دیوبند کے علماء نے جو ہے ان کی دعائیں مغفرت کی۔ حضرات اہل سنت اس نے مطالبہ کیا کہ کون ہیں جنہوں نے جو ہے دعائیں مغفرت کی۔ حضرات اہل سنت وہ پیپر جو ہے میری نظروں سے گزرا تھا، لیکن
इत्तेफाक कहिए कि बर वक्त वो पेपर मुझको मिल नहीं सका, चूँकि मेरे मोबाइल में भी वो पेपर था लेकिन वो मिल नहीं सका, लिहाजा इसको मैंने फ़िलहाल तो दलील में पेश नहीं किया, लेकिन मैं इसको इंशाअल्लाह रहमान इसी रिकॉर्डिंग में, जो ये रिकॉर्डिंग जा रही है इसी रिकॉर्डिंग में इंशाअल्लाह रहमान उस पेपर का कट भी आप हज़रात के नज़र नवाज कर दूंगा। आप हज़रात पढ़ लीजिएगा कि इनके देवबंदी उलमा ने जो है कैसे इनके लिए हुज़ूर ताजुल शरिया अलैहिर्रहमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। और ये तो बात अभी की है ना हज़रात, और मैं इनको साबित ये भी कर दूंगा कि जो इनके दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा निकलता है उस फतवे में भी मौलाना अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी को इन लोगों ने मुसलमान माना है। हज़रात अहले सुन्नत, ये लोग इतने बड़े झूठे हैं, इतने बड़े मक्कार हैं, इतने कद्दाब हैं। आइए उस रिकॉर्डिंग को सुने, देखिए ये किस तरह से जो है इधर उधर की बात कर रहा है। आप हज़रात इसे सुने और सुन करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुने हज़रात। हेलो जी जी, हेलो, हेलो, हाँ मिल रही है मेरी आवाज़? जी आ रही। आरिफ साहब बोल रहे हैं? जी हाँ, मैंने कहा था असल में आपसे वादा किया था कि मैं आपको आज फ़ोन करूँगा, जी और दरअसल मैं फिर जैसे ही नहीं हुआ, मैं चलो फ्री पाया, मैंने कहा कॉल कर लूँ। अच्छा, आप टाइम है अभी आपके पास? अभी तो पढ़ा रहा हूँ। तो अभी यानी बात आपसे नहीं हो पाएगी, फिर अभी के बाद मैं निकल जाऊंगा काम पे तो थोड़ा सा मामला हो जाएगा। तो अच्छा मुझको फुर्सत नहीं मिल पाएगी, तो अगर 10 मिनट मुझको वक्त दे दे तो अभी बात हो जाए, क्योंकि आपने कल मुझसे कहा कि मैं मुनाजरा करूंगा आपसे। जी, तो अगर आप मुनाजरा करेंगे भाई, आप मुनाजिर हैं, तो 10 मिनट के लिए तो टाइम आप निकाल ही सकते हैं, क्योंकि फोन पे गुफ्तगू 10 ही मिनट की होती है। अच्छा हाँ, 10 ही मिनट में जो होना होता है हो जाता है कि नहीं? अच्छा, तो है आपके पास वक्त? जी बोलिए। नहीं, चूंकि मैंने कहा ना, आपने कल ये दावा किया कि मैं मुनाजरा करूंगा, मैंने कहा ठीक है आप मुनाजरा करिए। आपने मौजू भी जी आपने मौजू भी क्या, एक मिनट क्या मौजू बताया था आपने अपना मौलाना? मेरा मौजू ये था कि अहमद रजा बरेलवी साहब मुसलमान हैं या काफिर हैं? आपका मौजू क्या था? मौजू यही है कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी साहब मुसलमान हैं या काफिर हैं, ठीक है। हाँ। मेरा दावा यह है कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी अपनी इबारात और अपनी उसूल, अपनी कुतुब और अपने हम मसलब उलमा की तहरीरात और उनके उसूल के तहत दायरे इस्लाम से बाहर हैं। ये आपका दावा था, ठीक है जी। तो अब इस दावे पे क्या होता है जानते हैं? पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, जब उसूल मुनाजरा पढ़ेंगे, समझ रहे हैं जी और उसूल की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, जब मुद्दई अपना दावा पेश कर देता है, समझ रहे हैं ना जी, तो मुद्दा अलैह जो है अपने कुछ तनकीहात उस पे पेश करता है। समझ, अगर तनकीहात है तो उस पे तनकीहात पेश करता है, ठीक है जी। और अगर तनकीहात से वो मामला साफ हो जाता है तो फिर मुद्दा अलैह जो है होता है वो जवाबे दावा पेश करता है, ठीक है जी। जब जवाबे दावा मुद्दा अलैह पेश कर देता है तो फिर मुद्दई जो है उस पे दलील पेश करता है, ठीक है तो ये तो आपका अभी दावा हुआ, ठीक है जी। देखिए ये आपका दावा हुआ कि मौलाना, मेरी सुनिए मेरी बात, अभी आप अपने बहुत बोलते हैं यार, कल भी आप बोलते रहे। तो आपने तो अपना, सुनिए आरिफ साहब, आपने तो अपना मौजूद चुन लिया ना। जी जी, अब मैं बताऊं, आप 2 मिनट खामोश हो जाएं। जी चले बोले आप। ठीक है, आपने मेरे दावे पर तनकीहात कल ही कर ली थी, वो रिकॉर्डिंग हमारे पास महफूज है। चलिए ठीक, तो वो रिकॉर्डिंग महफूज है। अब मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। नहीं आप ठीक है, आगे कैसे बात बढ़ाएंगे? मैंने पूछा था कि वो कौन से आलिम है जिसने ताजुश शरिया के लिए जो है दुआए मगफिरत की थी। चलिए ठीक है, बताया नहीं। चलिए ठीक है, मैं भागा नहीं, मैंने आपको वो कल भी मैंने बता दिया था कि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ की बात हो रही थी, मैंने फिर दोबारा भी खैर दोबारा भी एक मिनट दोबारा भी आपको मैंने फोन करके, आपको जब अपने नंबर से आपने फोन किया तो मैंने आपको बताया ना कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है, मैंने आपके उस साथी को उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया। एक चीज नहीं तो आप नाम बता के जाते ना, नाम बताने में कितनी क्या नाम लगती है? नहीं, मोबाइल ही मेरा बंद हो गया। चलिए खैर छोड़िए सारी बात, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। अब उस आलिम का नाम बताइए। हाँ, मैं चूंकि मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा है मोहतरम जी, वो पेपर कट जो है मेरे मोबाइल में, वो पेपर कट है, उसमें आपके आलिम का नाम भी है। मेरी बात सुने आप, लेकिन तो पहले उस आलिम का नाम बताइए। नहीं इधर उधर भागने की कोशिश नहीं, आलिम का नाम बताइए। भागना तो ये हमारी फितरत में शामिल नहीं। पहले पूरी बात तो सुनेंगे कि सिर्फ आप ही बोलेंगे? अरे मुझे बोलने नहीं, आप ही कल से नहीं, आप लोग नहीं क्या सीख लेते हैं भाई? पहले बात तो सुनिए। पर यार मैं तो कह रहा हूँ हर बात में नहीं, हर बात में नहीं, हर बात दलील पेश करें। अरे तो दलील दावा कर रहे हो
लिए दलील जरूरी है। दावा तो आपका है ना मोहतरम, मेरा दावा नहीं है। आपका है कि जो है ताज शरिया के लिए जो है हमारे आलिम ने जो है दुआ मग़फ़िरत की, तो ये दावा आपका है, तो आप दलील पेश करें। मोहतरम मेरी बात तो पूरी होने देंगे। जो आप कह रहे हैं दलील, मैं कह रहा हूँ कि वो दलील पेपर पेश करिए। अरे बात तो सुने आप पहले। वो पेपर कट मेरे मोबाइल में है, उसको मैं ढूंढूंगा। उसमें आपके आलिम का आपने नाम पूछा था, मैं उस आलिम का नाम पढ़ करके आपको बता दूंगा। करते हैं, आपके पास दलील नहीं है? दलील है, 1 मिनट, दलील है। और ये सुनिए, आपने अभी तक ढूंढा ही नहीं। अच्छा, ये चीज तो एक बात साफ हो गई। ये तो दलील पहले मेरी बात सुने। आपने अपना मुनाज़रे का बता सकते। हाँ चलिए मैं नाम बताऊंगा। नहीं अभी सुने, नहीं मेरे तनकीहात जो है, पहले तनकीहात, मैं मेरी बात सुनिए, तनकीहात पहले जो हो जाए, तनकीहात पूरी तरीके से नाम बताइए। सुनिए ना, आपने कहा ना कि आप जब ये तय हो जाए, आपसे मैंने उस पर कुछ पूछा था, आपसे सवाल किया था, जो हमारे तनकीहात है उन तनकीहात का। हाँ वो तो तनकीहात आपने कर लिए। नहीं अभी कहाँ कर लिया है? हमारे आलिम का जिक्र कर रहे थे, हमारे किसी आलिम का जिक्र कर रहे थे। मोहतरम मैंने आपके दावे पे जितने भी तनकीहात है मेरे पास। यार आप तो एक सवाल का जवाब भी नहीं देते, दलील भी नहीं देते, अपने दावे पे दलील नहीं दे पाते हैं। पहले तो कैसे मुनाज़िर हैं? पहले तो आप अपने दावे की दिफा करेंगे ना। जो आपका दावा है वही दावा ही बातिल है। मैं उसको साबित कर रहा हूँ ना कि आपका जो दावा है वही बातिल है। जो आप दावा लेकर के, जो मौजू लेकर के आए हैं वही बातिल है। मैं उसी को साबित तो कर रहा हूँ। तो तनकीहात क्यों कर रहे हैं? तो तनकीहात इसलिए कर रहे हैं कि आप उसकी दिफा करें। पहले तनकीहात का जवाब तो दीजिए। तो कर रहा हूँ। तो एक ही तनकीहात, मैं क्या तनकीह नहीं बोला हूँ? तनकीहात जो होते हैं वो एक ही होते हैं क्या? आपको ये बताया पहले। मैंने तो एक पेश किया, वही तो मैं दूसरा पेश कर रहा हूँ। तो मैंने दूसरा, मैंने एक तनकीह की, अरे मेरी बात सुने, मैंने क्या कहा? ये आपने एक तनकीह ये की थी कि हमारे किसी आलिम ने आपके ताजुश शरिया के लिए दुआ मग़फ़िरत की है। हाँ ये तो आप उस आलिम का नाम बताइए, फिर मैं उसके ऊपर आपसे जो है बात करता हूँ। आप नाम बताएं। मोहतरम मैं नाम बताने से भाग नहीं रहा हूँ, मैं नाम आपको बताऊंगा। कैसे आप भाग रहे हैं? भाग मैं नहीं रहा हूँ, बता दीजिए ना। इतनी देर हो गई, अभी तक आपने आलिम का नाम नहीं बताया। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? लेकिन आप तो क्या नाम क्यों नहीं बता रहे? नाम तो बताएं। मैं इसलिए नाम नहीं बता पा रहा हूँ मोहतरम कि उसमें मैंने कहा कि ये पेपर कट मेरे मोबाइल में है। तो आप मुनाजरा कर रहे हैं। तो मुनाजरा, आपके पास दलील नहीं है? नहीं दलील भी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मोबाइल में तलाश करने के बाद मैंने बहुत तलाश किया, वो मिला नहीं। और मेरी वो नजरों से वो पहले मेरी पूरी बात सुने। मैंने जो ये दावा किया है कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा की इंतकाल के बाद जो है आपके उलमा ने उनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया, ठीक है। इसके अब जो मैंने दावा किया है, और चूंकि ये मेरी नजर से ये पेपर कट मैंने गुजरा, ये पेपर कट जो है मेरी नजरों से गुजरा है, ठीक है। अब इस दलील में मैं आपको वादा भी मैंने किया कि इसको मैं आपके व्हाट्सएप पे दे दूंगा, एक चीज। दूसरी बात यह है, मैं अगर बात होती रहेगी आपसे तो मैं इंशाअल्लाह उनका नाम भी पढ़ करके सुना दूंगा पेपर ही में, एक चीज हो। चलिए जब आप सुनाइएगा, हाँ ये मेरी बात। हाँ चलिए, जब आप नाम बताइएगा तब बताइएगा। आप मेरी बात सुने। हाँ बोलिए। ठीक है। आपने जैसा कहा कि हमारे आलिम ने, यानी देवबंदियों के किसी आलिम ने तुम्हारे ताजुश शरिया के लिए दुआ मग़फ़िरत की है, ठीक है। तो आपका ये कहना है कि ऐसा शख्स काफिर है? नहीं मेरा नहीं है, मैंने आपसे पूछा था, आपने उसको कहा था काफिर है। जी अब सुनिए, हमने आपसे कहा था जो शख्स मौलवी अहमद रजा बरेलवी के अकायद व नजरियात जान लेने के बाद हाँ वाक़अतन ऐसा शख्स काफिर है, ठीक है, तो तब वो काफिर हो जाएगा। अच्छा, अब आपने जिस आलिम के मुतालिक कहा है कि उन्होंने आपके ताजुश शरिया के लिए दुआ मग़फ़िरत की है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने वो ताजुश शरिया के तमाम अकायद व नजरियात और उसके जो कुफरिया एक बात बताइए मोहतरम हैं, क्या उन सारी चीजों से आपका सवाल मैं समझ गया। आरिफ साहब मैं आपका सवाल समझ गया। ये बताइए कि जितने भी नजरियात हैं या सिर्फ एक नजरिया भी अगर आदमी को सामने मिल जाए उस नजरिए से, यानी कि जो कुफरिया नजरिया हो, मेरी बात को आप समझे, एक नजरिया भी हो, जैसे कि एक ही कुफ्र का हुक्म उस पे वाज़े होता है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर उसको मुसलमान मानता है, ठीक है, तो भी आदमी काफिर होगा या मुसलमान रहेगा, ये बताइए। जैसे देखो जैसे मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि, ठीक है, तो
अब आप लोगों का ये इफ्तरा और झूठ है कि उन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया है। ये मौजूद, हालांकि ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, रहमतुल्लाह अलैह की कई कुतुब से मैं मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी, देखिए मैं अभी मेरा मौजूद है मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो फिर कासिम नानोतवी के पास क्यों जा रहे हैं? और नहीं, तो मैं जा नहीं रहा हूँ, बल्कि मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, जो मशहूर होता है हम उसी की जो है क्या बोलते हैं मिसाल देते हैं ताकि आवाम समझ जाए। ठीक है, दूर की मिसाल नहीं देते हैं, करीब की मिसाल देते हैं। चलिए बोलिए। ठीक है, तो उनकी कई कुतुब से जो है वो ये साबित होता है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नजदीक आखिरी नबी हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके ऊपर जो है कहते हैं कि वो उन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया इसलिए वो काफिर हैं। तो देखा जाएगा कि जो है क्या वाकयातन उसका यही अकीदा है। आप असल में अभी फिर मेरा सवाल नहीं समझे, जो मैंने सवाल किया आप, इसीलिए मैंने आपको उसमें रोक रहा था। मैं समझ गया, आप नहीं सवाल नहीं, एक ही मैं क्या कह रहा हूँ, मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी की सुनिए मेरी बात में। मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, समझ रहे हैं मेरी बात, सुने आप जी। अगर उनका एक भी कुफ्र, समझ रहे हैं, एक भी कुफ्र अगर वाजे हो जाए किसी पे, ठीक है जी, जैसे जैद बकर, किसी पे अगर उनका एक भी कुफ्र वाज भी उनको मुसलमान कहे, तो क्या वो मुसलमान कहने वाला मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा? अगर कुफ्र वाज़े हो गया तो उसको काफिर कहना जरूरी है। काफिर कहना जरूरी है। चलिए अब सुनिए, अब आप दलील दीजिए कि जिस आलिम ने उसके लिए दुआ मग़फ़िरत की है, मैं दुआ मग़फ़िरत शरिया का कुफ्र वाज़े हो गया। शरिया की बात नहीं, मैं मौलाना अहमद रजा की बात नहीं। मौलाना अहमद रजा को छोड़ो, अभी ताज शरिया के बारे में आपने कहा था कि उन्होंने ताज शरिया के लिए दुआ मग़फ़िरत की, तो मैं उसी पर हूँ। हाँ, उसी पे है ना, उसी पे, चूंकि आप बताइए नाम नहीं पूछ रहे। आलिम ने, हाँ चलिए अब मुझे बोलने दीजिए, मैंने रात ही में ताज शरिया का कुफ्र वाज़े हो गया। मुझे बोलने दीजिए, मैं आप वही पूछ रहा हूँ। मैंने रात में भी ये बात आपसे पूछा था, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बताइए कि अगर मैं मसलके आला हजरत जो हमारे मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी हैं, जो उनके मसलक पर चलता है, जो उनका मुबल्लिग है, ठीक है, उनको हर नजरियात हर तरीके से उनको मुसलमान मानता है, ठीक है, तो ये बताइए कि उनको मुसलमान मानने वाला मुसलमान रहेगा या काफिर होगा? तो आपने ये हुक्म लगाया था कि वो काफिर होगा, है कि नहीं? तो मौलाना अख्तर रजा खां अजहरी मियाँ हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा ये मसलके आला हजरत के मुबल्लिग थे, ठीक है, मैं कह भी रहा हूँ कि ये आला हजरत के मिशन के मुबल्लिग थे, तो जाहिर सी बात है कि वो उनको मुसलमान मानते थे। मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को मुसलमान मानते थे, ठीक है, और उनको जब मुसलमान मानते थे तो आपके फतवे के रूह से मौलाना अख्तर रजा खां बरेलवी भी काफिर होते हैं, जैसा आपका फतवा है। नहीं, हमारा फतवा क्या है? फिर क्या है? समझ रहे हैं? फिर क्या है? हमारा फतवा यही है कि जैसे हमारा तो दावा यही था, आपने मेरा दावा ही नहीं समझा। पहली बात मैं तो समझ चुका हूँ, मेरा दावा ही मेरा दावा यही होता है। सुनिए, अब आप खामोशी के साथ सुनिए, एकदम सुन रहा हूँ, अब बोलिएगा नहीं बोलेंगे। मेरा दावा ये था कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी अपने ही तहरीरात और अपने ही कुतुब और अपने बनाए हुए उसूल और अपने हम मसलक उलमा की तहरीरात और उनके उसूल के तहत दायरे इस्लाम से खारिज यानी काफिर है, ठीक है, ये मेरा उसूल है। यानी मेरा उसूल ये नहीं कि हमारे उलमा के उसूल के, मेरी बात हमारा देखिए, यहाँ रोकना पड़ेगा आरिफ साहब, मुझे सुनिए, यहाँ रोकना पड़ेगा। आप ये बताएं कि उलमाए देवबंद के आप वकील बन करके आए, अकाबिर उलमा के अपने वकील है या नहीं है? क्या मौलवी थानवी, मौलवी नानोतवी या और उलमा क्या आपके लिए हुज्जत नहीं है या आपके अकाबिर उलमा नहीं है? मैं वही तो बात पूछ रहा हूँ, मुझे तो बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तकफीर का मसला जो है तहकीकी या तकलीदी, ये बताइए मुझे। ठीक है, आपने तहकीकी और तकलीदी जो बात आपने कही है ना मोहतरम, तो आप बताइए, मेरा सवाल है आपसे, ये तकलीदी है तहकीकी है? हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं क्या है बताइए। तहकीकी मसला है, चलिए तहकीकी मसला है ना? हाँ ठीक है, फिर हम तकलीद क्यों करें? हाँ ठीक है, तो आप इसको ये भी साथ में कहना पड़ेगा ना कि तहकीक के बाद भी मौलाना अहमद रजा को मुसलमान आपके उलमा ने माना है। मैं ये तो साबित कर रहा हूँ ना, क्यों नहीं मान रहे आप? कहाँ मौलाना थानवी ने तहकीक के बाद उनको मुसलमान माना है। कहाँ मैं पेश करूँ तो वही तो मैं आपसे, ये तो आप हुजूर ताजुश शरिया पे गए। चलिए, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने तहकीक के बाद उनको मुसलमान माना है। अलैह ने अहमद रजा बरेलवी को तहकीक के बाद साबित किया है। तहकीक कहा
साबित किया है? काफिर साबित, इमदादुल फतावा उठा कर देखें। हवाला पेश कीजिए, जदीद नुस्खे से नहीं, कदीम नुस्खे से पेश करिएगा। कदीम नुस्खे से मौलवी साहब, 2-3 हवाले में मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से देता हूँ। कदीम नुस्खे से, यमानी किताब पढ़ी है आपने? कदीम नुस्खे से, सैफ यमानी की बात करें, कदीम नुस्खे से, हाँ कदीम ही नुस्खा पेश। चलिए व्हाट्सएप पे हवाला पेश करिए, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दूं। अब सुनिए, 9116, 1 मिनट, 9116239721 पढ़ करके मत सुनाइए, पहले आप भेजिए। सुनिए, आप भेजिए। भेज दूंगा मैं सुनूंगा नहीं ना, मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप भेजिए तो मैं पढ़ूंगा। क्यों बौखलाहट के शिकार ना हो मौलाना? जब आप ये बताइए कि अभी तक तो मौलाना थानवी के, देखिए आप अपनी बात कह रहे हैं कि मौलाना थानवी के लगाए हुए कुफ्र के हम तकलीद नहीं करते। आप अभी ये बात बोले और कह रहे हैं कि कुफ्र जो है तहकीकी मसला है। तो जब आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या अपने अकाबिर की रोशनी में मौलाना अहमद रजा को आप काफिर मानते हैं, तो कह रहे हैं कि वो तहकीकी मसला नहीं है। नहीं, जिन्होंने तहकीक की है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि तहकीक के बाद उनको उन्होंने मुसलमान कहा है। मैं पेश कर रहा हूँ ना, मुझसे हवाला क्यों नहीं लेते कि उन्होंने तहकीक के बाद। और जो इमदादुल फतावा आप कह रहे हैं, इमदादुल फतावा मेरे पास वो किताब मौजूद है। मैं जो आप कह रहे हैं ना कुफ्र का हुक्म लगाया है, मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। ये आप ये पढ़ के मुझे किसी किताब से हवाला दीजिए कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आला हजरत की तमाम अकायद व कुफ्रियात, अच्छा तमाम क्या एक तहकीक के बाद, सुनिए हाँ चलिए ना, सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आला हजरत का कुफ्र वाज़े हो गया था और उसके बाद उन्होंने जो है दुआ मग़फ़िरत की है। चलिए किताब खोलिए, आपके पास किताब होगी, एक मिनट रुकिए। मैं अभी मैंने कहा लाइन पढ़ रहा हूँ ना, रुकिए तो, किताब मेरे पास मौजूद है। 15 मिनट हो गए, जल्दी बोलिए, मेरे बच्चे बैठे। 1 मिनट। किताब का नाम है मलफूजाते कमालाते अशरफिया, ठीक है? मलफूजाते कमालाते अशरफिया, हाँ, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमहुल्लाह, ये आपकी किताब है। और ये इदारे तालीफात अशरफिया, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर, ये आपके यहाँ से ये मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। क्या लिखा है? हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी, ये लिखा हुआ है। मैं झूठी बात थोड़ी ना, मुसन्निफ है ये। 1 मिनट, इसमें मुसन्निफ का नाम नहीं लिखा हुआ है। हाँ सुनिए, इसमें मुसन्निफ का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके मदबे से किताब छपी हुई है। नहीं, मुसन्निफ का नाम बताइए। मुसन्निफ का इसमें नाम ही नहीं लिखा हुआ, तो मैं मुसन्निफ का नाम अपने से लगा दूंगा। पढ़ो देखो। अच्छा क्या? तो या आप दावा कर, मैं मुसन्निफ का नाम बता दूंगा, या आप दावा करें कि हमारे घर की किताब नहीं है। अच्छा, आपके घर की किताब है? हाँ, मलफूजात है। मलफूजात है। हाँ, मलफूजात हुज्जत हैं। क्यों? अब तुम्हारे तो आलिम कहते हैं मलफूजात पर एतराज नहीं। क्यों नहीं? इसमें अगर जब आप कह रहे हैं तहकीक के बाद, 1 मिनट सुनिए यार, इसमें जब ऐसी उसूल में पेश कर रहा हूँ, आपका उसूल, आपके जो उसूल हमारे उसूल, हमारा दावा यही है कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी यार अपने उसूल के तहत काफिर है, तो आप अपने उसूल क्यों नहीं ले रहे? आप अपने उसूल पे क्यों कायम नहीं? जब आपके उलमा मुसलमानों को मानते हैं, हमारा दावा आपको दावा ही नहीं समझ में आया, तो आप बात क्या करेंगे? आप दावा तो अपना दावा साबित नहीं कर पाए। पहली बात तो मैं साबित कर रहा हूँ। 1 मिनट, आप मेरे उसूल को तो दिखा रहे हैं। 1 मिनट, तो आप मेरे उसूल को दिखा रहे हैं। पहले मेरी बात सुने ना, आप मेरे उसूल को जब दिखा रहे हैं तो आप अपने उसूल पे भी तो है कि आपके मौलाना ने भी उनको काफिर नहीं मुसलमान माना है। अशरफिया का जिक्र किया। अब सुनो, हवाला मैं पेश कर रहा हूँ, सुनो। हाँ, आपके उलमा, हमारे अकाबिरीन, सुनिए, आप बोलिएगा नहीं, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि वक्त को ज़ाय मत करो। मेरा जो 1 मिनट, आप मेरे उसूल को 1 मिनट, मेरे उसूल से जब मुझको आगाह कर रहे हैं, तो आप अपने उसूल पे रहेंगे। मलफूजात हुज्जत नहीं। अरे आपके लिए तो ये आपके लिए आपके आलिम की बात पेश करूंगा ना। 1 मिनट की ये बताइए, क्या ये सिर्फ मलफूजात ही में नहीं, मजालिसुल हिकमा जो आपकी किताब है उसमें भी ये इबारत मौजूद है? अच्छा, मजालिसुल हिकमा कब की लिखी हुई किताब है? की लिखी हुई है, आपके उलमा ने लिखी है ना किताब। मौलवी थानवी के हवाले से जो गुफ्तगू हुई उसमें बात में, तो ये आपके उलमा ने इसको लिखा। कब लिखी हुई है? अरे तो क्या ये आपके अकाबिरीन, ये आपकी किताब नहीं है? आपकी लिखी हुई है। पहली बार जब की लिखी। 1 मिनट, मैं अभी सुनिए 1 मिनट सुनिए। नहीं तो जो आप अभी पेश कर रहे हैं, क्या कदीम नुस्खे से पेश कर रहे हैं? अभी देखो मैं कितने हवाले पेश करता हूँ। सुनो तुम क्या हवाले पेश करोगे? मजालिसुल हिकमा, मजालिसुल हिकमा मैं डींगे नहीं। सुनिए, आप लोग मजालिसुल हिकमा कब की लिखी हुई किताब है? जब की लिखी हुई है। ये बताइए कि क्या इसमें मौलवी थानवी की बात को आपके उलमा ने नहीं नकल किया है? कब की लिखी हुई है? इसमें क्या लेना देना, ये बताओ। क्यों नहीं यार, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है अपनी जुबान से, अपने कलम से जो है उसके लिए जो है
क्या बोलते हैं कुफ्र का कौल किया है मौलवी अहमद रजा बरेलवी का। सैफ यमानी में ये बात मौजूद है कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी अपने उसूल से काफिर है, ठीक है। कहाँ ये देखिए जो आपने पहली बात तो आपने मुफन्नद जो आप इसकी बात कर रहे हैं ना, वो क्या नाम है, खलील अहमद अल्वेती की, सुनिए रहमतुल्लाह अलैह ने, सुनिए मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीज मौजूद है। सुनिए ये इमदादुल फतावा मेरे पास अभी चलानी चाहिए, यही तो आपने इमदादुल फतावा की बात की है। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, अच्छा ये इमदादुल फतावा के मुसन्निफ कौन है, जरा बताइएगा इमदादुल फतावा के मुसन्निफ कौन है? तुम्हें नहीं पता? नहीं तुम बताओ ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यार, ये तुम्हारे घर की किताब नहीं बता रहे हो, बताओ ना किसकी किताब है ये? अरे ये मजालिसुल हिकमा पे इमदादुल फतावा किसकी किताब है? अभी तो तुम इसमें थप्पड़बाजी चलाना चाहते थे ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। ये किताब मेरे पास मौजूद है, मैं जब आऊंगा तब बताऊंगा ना मौलवी साहब। इमदादुल फतावा ये किस मुसन्निफ का क्या नाम है? जी अभी मैं बता रहा हूँ। अरे बताओ ना यार, मैं मजालिसुल जो आपने जो कलाबाजी खेली है, मैं इसको पहले वाजे कर दूं। मजालिसुल हिकमा जो किताब का नाम आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बताइए कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब आप करार दे रहे हैं ना? देखो सारी चीजें जो आप मुझसे कह रहे हो ना, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये बताओ कि जहाँ मौलवी थानवी ने, मैं भाग नहीं रहा, जहाँ मौलवी थानवी ने मौलाना अहमद रजा को मुसलमान माना है, ये झूठ है या सच है? ये पहले इतनी बात बताओ ना यार। सच है, सच है ना? थानवी रहमतुल्लाह अलैह उसको काफिर का है जी। नहीं मुसलमान माना है, ये झूठ है या सच है? इतनी बात का यकीन पहले ये करो ना। नहीं देखो हमारे अकाबिरीन किसी को उस वक्त तक काफिर नहीं कहते थे जब तक कि उसका कुफ्र वाजे ना हो। अरे यार वही तो मैं बता रहा हूँ कि के बाद भी मुसलमान मान लिया। हरगिज नहीं। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आप किताब का नाम ले रहे हैं तो ये कब की लिखी हुई है? फिर मैं बताऊंगा कि जो है मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कब जो है उसको काफिर कहा है, जब उसका कुफ्र वाज़े हो गया। मैं इंशाल्लाह साबित करूंगा। देखो जितनी किताबों का आप नाम ले रहे हो, उसके तारीख और वो सारी चीजों जो बात कर रहे हो वो उस पर बात कर लेंगे। मैं जितनी बात पूछ रहा हूँ इसलिए कि फोन पे जो आपने किताबें पेश की, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। मैंने जो मैंने किताब मैंने मलफूजात कमाल, बताइए मजालिसुल हिकमा कब की लिखी हुई किताब है? एक मिनट सुनिए, मजालिसुल हिकमा की जो बात करें, फिर उसके बाद साहब, अरे मौलवी साहब मैं घबराने रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरी बातों का जवाब। अभी तक आपने जो है आप अपना दावा नहीं साबित कर पाए मौलवी साहब, वही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। कहाँ दावा साबित हो पाया? अपने अकाबिरीन के नजदीक मैं बता रहा हूँ कि मौलाना अहमद रजा को तुम काफिर नहीं साबित कर पाए यार। इमदादुल फतावा ये मेरा दावा ही नहीं है। अरे मेरे भैया ये मेरा दावा ही जब ये तुम्हारा दावा, एक मिनट, तुम्हारा दावा है मौलाना अहमद रजा की तकफीर का और तुम्हारे उलमा उनको मुसलमान मानते हैं, जो तुम्हारे अकाबिरीन है उनको मुसलमान मानते हैं, तो तुम्हारा दावा झूठा होगा। अपने ही ये तुम्हारा दावा है कि मौलाना अहमद रजा काफिर है। देखो भाई आप लोग गौर करो, ये कह रहा है कि मौलाना अहमद रजा काफिर है, जिसके तहत और इसके अकाबिरीन मौलाना अहमद रजा को मुसलमान मान रहे हैं। फेल रजा दावा तो समझ, मैं दावा समझ रहा हूँ, तू अपने दावा कैसे बन गया? किसने तुझे मुनाजिर बना दिया? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें मुनाजिर किसने बनाया कि जो अपना दावा ना साबित कर सका? अरे दावा तो साबित कर दिया है। कहाँ दावा साबित कर पाए? अरे जाहिल मतलब कहाँ दावा साबित कर पाए? वही तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। दावे पे दलील दूं? दलील जब मेरे तनकीहात की दिफा करेगा जब ना तू दलील दे। जब अरे तो जो तू जिस किताब तो ये बयान कर रहा है, जिस किताब का नाम ले रहा है, मैं उस पे तेरी गिरफ्त कर रहा हूँ, तू झूठ बोल रहा है। अच्छा तो क्या ये झूठ बोल रहा है? मैं यही तो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जिस मलफूजात यही तो बोल कि क्या मौलवी थानवी ने आला हजरत को जो मुसलमान माना है ये झूठ है या सच है? ये बताओ। के नजदीक जो मलफूजात कोई हम क्या पूछ रहे हैं? हम क्या पूछ रहे हैं? मलफूजात पे कोई एतराज नहीं। हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? दूसरी बात जो मौलवी थानवी ने, पहले मेरी बात सुनो, मौलवी थानवी ने जो मुसलमान माना है मौलाना अहमद रजा को, ये बात झूठ है या सच है? मजालिसुल हिकमा कब की लिखी हुई किताब है? तेरा दावा ये है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तहकीक के बाद उसको मुसलमान लिखा है। तो ये बता कि मजालिसुल हिकमा कब की लिखी हुई किताब है? अभी तहकीक में बताता हूँ कि तहकीक है या नहीं है। अरे यार जल्दी बोल। अरे यार ये बता कि तुम तुझसे मेरा एक मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, तू ही सवाल करता रहेगा यार, कुछ जवाब भी दिया कर। मैं जवाब दूंगा, सिर्फ एक बात का तू इनकार कर दे, मैं सब सारा जवाब दूंगा कि मौलवी थानवी ने जो मौलाना अहमद रजा को मुसलमान माना है ये झूठ है या सच है? इतनी बातों का जवाब। हाँ इसी का जवाब ले ले, फिर मेरी बात गौर से सुनना। हाँ इतनी बात है। हाँ बोल। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब तक मौलवी अहमद रजा बरेलवी का कुफ्र वाज़े नहीं हुआ था उससे हुस्न जन रखते थे, लेकिन जब उसका कुफ्र वाज़े हुआ थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने
अरे सुनिए, मुसलमान मानते थे, जाहिल कैसे हो गए तुम? मुतलक जाहिल मुतलक ऐसा है ना, देखो मेरी बात सुनो, पहले मुसलमान मानते थे, ये जब तक उसका कुफ्र वाज़ेह नहीं हुआ था हुस्न ज़न रखते थे, यानी उसको मुसलमान कहते थे। अगर कोई जो है किसी आलिम का नाम बिगाड़ के लेता था, तो मौलवी अहमद रजा बरेलवी का नाम बिगाड़ के लिया तो मौलाना थानवी ने डांट दिया उसको, क्योंकि उसका कुफ्र वाज़ेह नहीं होता, हुस्न ज़न रखते थे। लेकिन जब उसका कुफ्र वाज़ेह हो गया, फिर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने उसको काफिर लिखा है, सैफ यमानी उठाकर देख ले और पहले मेरी बात सुनो, जिस पे कुफ्र का हुक्म लगाया है, जो किताब में वो उसका तू व्हाट्सएप कर, और पहले जो मजालिसुल हिकमा का नाम लिया, उसका वो बता कि किस कब छपी हुई है, लिखी गई है। तो तूने कही ना कि उनको मुसलमान माना है, ये बात तो तूने मानी कहाँ? और इसी में मैं कह रहा हूँ कि तहकीक के बाद मुसलमान माना, इसी में मैं बता रहा हूँ। ये हवाला पेश करके उन्होंने तहकीक के बाद जो मुसलमान का, ये हवाला दो यार कि इसी के बाद तो उस तहकीक के बाद ही मुसलमान माना, यही तो ये हवाला दो मुझे, ये हवाला दो मुझे। कह रहा हूँ तो तुम मजालिसुल हिकमा कब की लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है मुसलमान का, ये हवाला मुझे दो। तहकीक के बाद मुसलमान माना है तो कौन सी इबारत है, कहाँ लिखी है, कौन सी किताब है? पेश कर रहा हूँ, एक शख्स, कौन सी किताब है, कौन सी किताब है? सुनो, एक किताब का नाम बताओ, पहले किताब का नाम। मलफूजात कमालात अशरफिया। ये कब की लिखी हुई है? ये तेरे इसमें सनून नहीं दिया है कि कब की लिखी हुई है, मैं क्या जानता हूँ कब की लिखी हुई है। ये मलफूजात हुज्जत हैं तुम्हारे नजदीक? क्या इसमें मौलवी थानवी की जो बात है ये झूठ है या सच है? पहले हुज्जत है या नहीं? तुम्हारे मसलक में हुज्जत है या नहीं? बता कि जो इसमें मौलवी थानवी ने बातें लिखी है या झूठ है या सच है? चलो ठीक है, तुम्हारे मसलक में हुज्जत है या नहीं? क्या पूछ रहे हैं, इसमें जो बातें मलफूजात तुम्हारे मसलक में हुज्जत है या नहीं? इसमें जो मौलवी थानवी ने बात लिखी है इसमें झूठ है या सच है? हुज्जत है या नहीं, तुम ये बताओ पहले ना। इसमें मौलवी थानवी ने जो बात लिखी है क्या? अरे मलफूजात तेरे मसलक में हुज्जत है या नहीं यार, इतना तो बता पहले। वही तो तुझसे पूछ रहा हूँ कि ये इसमें जो इबारत है ये झूठी है या सच है, ये बताना। तू बताता क्यों नहीं है? ये इसमें जो बातें लिखी हुई है क्या झूठ है या सच है? देखो हाँ सुनो, अगर ये जिस किताब का नाम तुम ले रहे हो, ठीक है, इसमें अगर मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की कोई बात लिखी हुई होगी तो वो जो है पहले की होगी। अच्छा चलो, मैं जब तक कि उसका कुछ वाज़ेह नहीं हुआ था। एक कॉल मैं ठीक है, एक कॉल पढ़ता हूँ, लेकिन मैं तुझे सुनो, अगर तुम्हारी किताबों पे मुताला होगा तो जाहिर सी बात है तुम अपने मौलवी के कॉल को पकड़ लोगे कि ये सब मौलाना थानवी के कॉल है या नहीं है। सुनो मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं ये तो मैंने पहले ही तुझे बता दिया हूँ कि सुनो मैं पढ़ रहा हूँ, उसको सुन करके तुम बताओ ना कि ये तुम्हारी किताब है। किस किताब से पढ़ रहे हो? मैं मलफूजात कमालात अशरफिया। अरे भैया मलफूजात हुज्जत हैं तुम्हारे नजदीक, ये तो बताओ पहले। हुज्जत नहीं तो तुम ये बताओ कि इस किताब में क्या जो इबारत है वो झूठी है या सच है? अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो इबारत आप पेश करने जा रहे हैं, सुनो, जो इबारत आप पेश करने जा रहे हैं तो उसमें ये भी हो कि तहकीक के बाद तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। पढ़ो बाबू पढ़ो। सुनो मौलवी साहब सुनो। एक शख्स ने पूछा हम बरेली वालों के पीछे नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी या नहीं? ठीक है, फरमाया हाँ, हम उनको काफिर नहीं कहते, अगरचे वो हमें काफिर कहते हैं। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? ये मौलवी थानवी साहब कह रहे हैं कि हम बरेली वालों के पीछे नमाज हमारी हो जाएगी, वो हमें काफिर कहते हैं, अगरचे हम उन्हें काफिर नहीं कहते। अब सुनो मेरी बात को, अब इसका तुम जवाब दो। मैं इसमें कहाँ भैया तहकीक के बाद मुसलमान? हाँ, तो तहकीक के बाद तहकीक कहाँ है मैं तुमको बता रहा हूँ ना। हाँ कहाँ? जी हाँ बताओ। ये बताओ, मेरी तुमसे बात हो रही है, जितने आप जो सवाल होंगे उसके जवाब देना। ये बताओ कि मेरी बात आरिफ से हो रही है और तुफैल से हो रही है, ठीक है? मैं तुफैल तुम्हारी। ये बताओ कि अगर मैं तुमको काफिर कहूँ, मैं पहले तो ये जानू नकले कुफ्र नबासत, ठीक है? अगर मैं तुमको काफिर कहूँ, ठीक है, तो अगर तुम पे कुफ्र सादिक आ रहा है, ठीक है, हेलो, तो तुम काफिर हुए। और अगर कुफ्र सादिक ना आए तो कुफ्र किसकी तरफ लौटेगा? मेरी तरफ लौटेगा। इतनी बात तो तू मानता है ना? ये बताओ कि मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने मौलवी थानवी को काफिर कहा, ठीक है, और मौलवी थानवी को जब उन्होंने काफिर कहा तो ये बताओ कि अब ये तो 100% हो गया कि या तो मौलवी थानवी या मौलाना अहमद रजा के दोनों में से कोई एक काफिर हो गया हदीस शरीफ के मुताबिक। जो हदीस शरीफ है, बात को समझ रहे हो ना? जो हदीस शरीफ है मौलवी थानवी को काफिर कहा। अब ये तो 100%, 110%। अल्लाह अकबर, ये देखो अब तेरी मैं चालाकी समझ गया।
اب سن میری بات, تو نے کہا تھا دلیل تو یہ دینے جا رہا تھا کہ جو ہے تحقیق کے بعد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کا تحقیق, ارے اللہ اکبر اللہ اکبر, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کافر کا ہے, کافر کا ہے, مولانا تھانوی نے اس کو کافر کا ہے کہ مولوی تھانوی نے اپنے کفر کا اقرار کر لیا, یا تو تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ اپنے کو مسلمان مان کر کے جب اپنے کو مسلمان مانا تو ظاہر سی بات ہے کہ حدیث شریف کے مطابق وہ کفر مولانا احمد رضا کی طرف لوٹتا تھا, جس کے بعد بھی اس نے کافر نہیں کہا. یہ تو تحقیق اب تو بات اب کون سی تحقیق ہوتی ہے یہ بتاؤ نا. ہاں اب سنو سنو سنو, ٹھیک ہے بول لیا بول لیا, تو بولو نا مولوی صاحب بولیے آپ. میں کہہ رہا ہوں نا میری بات سنو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مولانا تھانوی سن سن دیکھو 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 ابھی تک آپ نے دعویٰ نہیں سمجھا, پھر میں بات وہی کہہ رہا ہوں, ابھی تک آپ جو ہے اپنا دعویٰ ہی نہیں, میرا دعویٰ ہی نہیں سمجھا. دیکھو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو کر رہا ہے کہ انہوں نے تحقیق کے بعد مسلمان کہا, لیکن تو ثابت نہیں کر سکا. اب میری بات سنو, پھر بحث ہوگی, پھر اس میں بحث ہوگی. رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حفظ الایمان نامی کتاب جو رسالہ ہے وہ مولانا احمد رضا بریلوی جو تمہارا مجدد ہے اس نے جو ہے اپنے دوست مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے سامنے پیش کیا. عبد الباری مولانا عبد الباری فرنگی محلی کا توبہ نامہ پیش کروں گا اپنے اکابر کی کتابوں سے. وہ بات چھوڑ, ادھر مت تو جا, ابھی یہ تیرا میں یہ ثابت کروں گا کہ مولوی احمد رضا بریلوی نے مولانا احمد رضا بریلوی نے جو ہے عبد الباری فرنگی محلی کو بھی کافر کہا, ایک منٹ, اور ہمارے اس کو بھی کافر کہا ہے. کس کو؟ تیرا مجدد. کس کو کافر؟ یہ بات جو ہے انوار مظہریہ میں لکھی ہوئی ہے. انوار مظہریہ جب ایک منٹ, انوار مظہریہ کا مولوی کون ہے؟ طالب جس نے کیا وہ ہماری جماعت کا کوئی اکابر ہے؟ پہلے یہ بتا. جو تمہارے مسلک کا نہیں ہے. کون ہے جو مولف ہے؟ کون ہمارے مسلک کا ہے جو مولف ہے؟ ہم اس کو جانتے بھی, ہماری جماعت کا نہیں ہے. ہمارے جماعت کے ہیں مولانا نقشبندی. ہاں, انوار مظہریہ وہی ہے مظہر اللہ تمہارا. تو ہاں تو سنو, یہ ہماری جماعت کے ہیں, لیکن جو اس کا مولف ہے یہ بتا کہ ہماری جماعت کے ہے, بتاؤ. اچھا, یہ انوار مظہریہ تیری کتاب نہیں, تیرے مسلک کی کتاب نہیں ہے. انوار مظہریہ یہ ہماری کتاب ہے, لیکن جو اس میں تعلیف ہے جو اس کا مولف ہے یہ کیا ہماری جماعت کا ہے؟ مولف تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ. دیکھیے محترم سامعین, دیکھیے کیسے کلا کھیل رہا ہے, یہ دیوبندیوں کیسے کلا کھیل رہا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں مولوی احمد رضا بریلوی کے اشعار پر جو ہے حکم کفر ظاہر کیا ہے, اور جو ہے المحند علی المفند میں بھی جو ہے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے. تھپڑ بازی کیا ان لوگوں نے, اور مولانا اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے. کئی جب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کفر واضح ہو گیا, مولوی احمد رضا خناس کیا, تو جو ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کافر اس کو کہا ہے. لیکن جب تک کفر واضح نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ جو حسن نظر رکھتے تھے, اس کو مسلمان ہی سمجھتے تھے, کیونکہ مولوی احمد رضا خناس کی کتابیں جو ہے عام طور سے ملتی نہیں تھی. ٹھیک ہے, یہ مولانا مرتضی حسن جانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسالہ جانپوری سے بھی مل سکتا ہے. یہ کیسے بھاگ رہا ہے آپ دیکھیے. الحمدللہ میں نے جتنی باتیں کہی ہیں, میں جتنی باتیں کہی میں نے الحمدللہ سب کا حوالہ دیا, لیکن یہ جو میں عالم کا نام بتا سکا نہ, جو ہے میں نے اس میں جو حوالے دیا میں نے اس کے اوپر جھوٹ کی وہ بھی نہیں ثابت کر سکا. آدھی ادھوری بات پیش کر کے جو ہے ادھر ادھر بھاگتا ہے, اور یہ اپنے مولویوں کے مسلک سے ہٹ گیا, یہ اپنے مولویوں کے مسلک سے ہٹ گیا. بھاگا رضا خناسی بھاگ لے رہا, میں تو لائن پہ بات کرنا, جواب دینا مولوی. ارے یہ تو تجھے جواب دینا ہے کہ تو نے جو بات کر رہا ہے, نہیں ادھر ادھر تحقیق پیش کر. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہاں لکھا ہے کہ مولانا تھانوی نے تحقیق کے بعد اس کو مسلمان کہا؟ ایک منٹ, اس میں تحقیق نہیں ہوئی کہ جب وہ کرے. دیکھو ہمارے اکابرین کا یہ شیوا ہی نہیں ہے, مولوی احمد رضا خناس کی طرح نہیں تھے ہمارے اکابر. مولانا تمہارے مجدد کی طرح نہیں تھے ہمارے اکابر, وہ تو جو ہے دین اسلام کے کاموں میں لگے رہتے تھے, اور تمہارا مجدد جو ہے بات بات پہ کفر کی مشین چلا دیتا تھا. کیا یہ تحقیق نہیں ہوئی؟ حدیث شریف کیا تیرا مولوی, کیا یہ تحقیق نہیں ہوئی؟ میں وہی تو تجھ سے پوچھ رہا ہوں کہ بریلی والے, ہاں سنو, بریلی والے جب مولانا تھانوی کو کافر کہہ رہے ہیں, ایک منٹ سنو, بریلی والے جو مولانا تھانوی کو کافر کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اگر مسلمان سمجھتا ہے تو کیا یہ تحقیق اس کے سمجھ میں نہیں آئے کہ کچھ جو کہہ رہا ہے اس کی طرف لوٹے گا؟ یہ تحقیق نہیں اس کے سمجھ میں آ رہی ہے. تو کہہ رہا ہے اچھا حدیث پڑھو, یہ حدیث پڑھو. ہاں میں حدیث پڑھ رہا ہوں, رکو پڑھ. میں حدیث پڑھ رہا ہوں نا, وہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے تو حدیث کا جو مطالبہ کر رہا ہے, تو حدیث سن کیا ہے؟ حدیث ہے اذ قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به احدهما.
क्या है इसका मतलब? हाँ, कि जो जिसने काफिर कहा, मतलब दो में से मतलब एक को किसी ने काफिर कहा, अगर इसमें क्या हुआ, दोनों काफिर हो गए। अगर जिस पे कुफ्र सादिक आया या तो वो काफिर हुआ, और अगर उस पे कुफ्र सादिक नहीं आया तो कहने वाला काफिर हुआ। ये हदीस शरीफ, क्या इस पे तेरा ईमान नहीं है? क्या हदीस शरीफ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुन मेरी बात को, आप बोलिए ना। बोल नहीं रहा हूँ। मौलवी थानवी को जो बरेली वालों ने काफिर कहा, एक मिनट, बरेली वालों ने काफिर कहा, तो अगर उस पे कुफ्र सादिक नहीं आ रहा था तो ये तहकीक तो वादे हो गई ना हदीस शरीफ की रोशनी में कि जो कहने वाला है वो काफिर हुआ, तो फिर उसके बाद भी क्यों मुसलमान माना? एक या तो अपने कुफ्र का इकरार खुद ही कर लिया, उसके बाद कहाँ काफिर माना? उसके बाद जो है उसको मुसलमान कहाँ माना? किसको मुसलमान तो कह रहा है, कहाँ है कि वो हमें काफिर कहते हैं, अगरचे हम उन्हें मुसलमान कहते हैं, वो तो कह ही रहा है। अब सुनो, जब ये हुस्न जन में कहा, हुस्न जन क्या, अब सुनो, जब उसका कुफ्र वाज़ेह हो गया, अब उसका कुफ्र वाज़ेह हुआ, जब कौन सी बात है? देख, जब उसका कुफ्र वाज़ेह हुआ, नहीं, जब उसका कुफ्र वाज़ेह हुआ तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको काफिर कहा है। हमारे अकाबिरीन के सामने, जिनके सामने जो है मौलवी अहमद रजा बरेलवी या किसी रजा खानी का कुफ्र वाज़ेह हुआ, हमारे अकाबिर ने जो है उसको काफिर कहा है, हमारे अकाबिर ने उसको काफिर कहा है। सुन, ये बता, अगर हम तुझको काफिर कहते हैं, सुन मेरी बात को, हम तुझे काफिर कहते हैं, समझ रहे, अगर कुफ्र तुझ पे सादिक नहीं आएगा, समझ रहे, तो फिर बताओ कि मैं काफिर होऊंगा या नहीं होऊंगा? ये क्या तेरी घोपड़ी में ये बात नहीं घुस रही है? बता, अगर अरे वही उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो देखो, हमारे अकाबिरीन ने, हालांकि जो है मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने धोखा दिया, फरेब दिया, हमारे अकाबिरीन को पता भी नहीं चला। पहले जो है हमारे अकाबिरीन को पता भी नहीं। सुनो, अरे खामोश हो जा, अब खामोश हो जा, मुझे बोलने दे, ठीक है? जब उसने जो है पता नहीं है, तो कह रहा है कि वो हमें काफिर कहते हैं, तो क्या ये पता नहीं? वो तो खुद भी इकरार कर रहा है कि वो हमें काफिर कहते हैं, वो जानता है, फिर कह रहे कहते पता नहीं। ये कब की लिखी हुई किताब है? अरे जबकि लिखी हुई, इस बात में तहकीक वाज़ेह है कि नहीं? जबकि लिखी हुई, कहाँ तहकीक वाज़ेह है? तहकीक कहाँ वाज़ेह है? तहकीक वाज़ेह नहीं है, हदीस शरीफ की रोशनी में तहकीक वाज़ेह नहीं है। क्या तेरा मौलवी हदीस शरीफ नहीं जानता? हदीस शरीफ नहीं जानता, ये हदीस नहीं जानता, तेरा मौलवी थानवी, वही तो तुझसे पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि जो है मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको काफिर कहा है, और काफिर कहने का, काफिर कहने का जो है कौल बाद का है। इसमें मैंने अभी साबित किया ना कि इसमें तेरे मौलवी ने तहकीक के बाद भी मुसलमान मान लिया है। नहीं, तहकीक के बाद नहीं मुसलमान माना। अच्छा, अब सुनो, तहकीक का कौल जो है बाद का है, ठीक है? पहले बात देखो, हाँ, सुनो, अरे मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरात से ये वाज़ेह हो जाता है कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी काफिर है। कैसे? और मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने भी मौलवी अहमद रजा बरेलवी को काफिर कहा है, ठीक है? मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी अहमद रजा बरेलवी को काफिर कहा है। नहीं, भागने नहीं, तेरा मौलवी अहमद रजा खन्नास काफिर साबित कर दिया मैंने अपने अकाबिर से, लेकिन अब तू अपने उसूल पे नहीं आ रहा है, अपने घर पे नहीं आ रहा है। तुम्हारा मौलवी अहमद रजा बरेलवी अपने ही तहरीर से काफिर है। ये साबित कर दिया ना, ये तो मैंने कह रहा हूँ कि ये अपने मौलवी को पहले बचा ले। तेरे मौलवी ने तहकीक के बाद भी उसे मुसलमान मान लिया। कहाँ तहकीक के बाद? ये बताना कि जो जिस किताब का तो हवाला पेश कर रहा है वो कब की लिखी हुई है? ये जब की लिखी हुई है, कब की लिखी हुई है? कब की लिखी हुई है? नहीं, गदहुल लजी तू है यार, धामड़ यार, बौखला गया जब दलील पेश नहीं कर पाता, तो यही बात होती है ना। इतना बताना, ये जब की लिखी हुई है, तू बता कि ये कब की लिखी हुई किताब है? जब काफिर कहा है बरेली वालों ने, जब काफिर कहा बरेली वालों ने, तब तो फैसला उसी वक्त होना था ना। देखो, ये तो हदीस शरीफ है ना कि जब बकर को काफिर कहेगा तो जैद या बकर दोनों में से कोई एक काफिर होगा। हाँ, बस तेरे उसूल पे आ रहा हूँ, जैसे मौलाना तुम्हारा जो मुजद्दिद है उसने जो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहा, ठीक है, उसने काफिर कहा, ठीक है। अब जो है वही किताब जिस इबारत पर मौलवी अहमद रजा खन्नास ने हुक्म कुफ्र जाहिर किया था, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह को जिस इबारत के तहत काफिर कहा था, सुनिए, ठीक है, जिस इबारत के तहत काफिर कहा था मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह को, वही इबारत
मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली के सामने पेश की। अरे भाग नहीं, वही मैं बात साबित कर रहा हूँ। तो मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली ने कहा कि मुझे इसमें कोई कुफ्र नजर नहीं आता, मुझे कोई कुफ्र नजर नहीं आता। तो मौलवी अहमद रजा खन्नास काफिर हो, चुप हो गया और आखिर तक दोस्ती बरकरार रखी। तो क्या उस वक्त मौलवी अहमद रजा खन्नास काफिर नहीं हुआ था? ये बोलो, काफिर हुआ था या नहीं? पहले मेरी बात सुनो, इस पे तो मैं तुझे एक नहीं बेशुमार दलीलें दे सकता हूँ। इस पे तो छोड़ो, काफिर हुआ था या नहीं ये बोलो। जो मैं काफिर हुआ था या नहीं? काफिर हुआ कि नहीं, यही तुम लोग रटे रटाए आते हो, रट्टू तोते हो क्या? तुम्हारे पास कुछ उसूल है, जाता है तुझे, तो तुम्हारे पास कुछ उसूल है, जाता है। जो ये बता दो, इधर उधर भाग रहा है, जो इधर उधर भाग रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि तुझको बौखलाहट हो गया। उसको मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली को काफिर नहीं कहा, तो खुद काफिर हुआ या नहीं? इतना बताओ मुझे। अच्छा चल, तू काफिर मान रहा है, खुद काफिर हुआ, काफिर मान रहा है ना? खुद काफिर हुआ? एक मिनट काफिर मान रहा है ना? तू बताना मुझे। हमसे क्यों पूछ रहा है यार? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ ना। हमारे सामने तो ये इबारत, हमारे सामने तो ये इबारत मौजूद है, हमारे सामने तो ये इबारत मौजूद है कि मौलवी थानवी ने मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली ने एक बात सुनो, मैं तुम्हारे मौलवी को, एक मिनट, मैं तुम्हारे मौलवियों को पहले मेरी बात सुनो। तो जो पहले मेरी बात सुनो, में जो फतवा है मौलवी अहमद रजा खन्नास का कि मन शक फी कुफरी व अज़ाबी फक़द कफर, जो काफिर के कुफ्र में भी शक करे वो खुद काफिर है। ये किसका फतवा है? जो है ये किसका फतवा है? ये किसका ज़ाब्ता है? हुसामुल हरमैन में लिखा हुआ है। किसका ज़ाब्ता किसका है? मौलाना अहमद रजा का ज़ाब्ता है। ये ज़ाब्ता मौलाना अहमद रजा का है। नहीं है, उससे मुझे गर्ज नहीं है। ये फतवा जो है हरमैन में कुफ्र में शक करे, ये ज़ाब्ता किसका है? पहले ये बताओ। वो ज़ाब्ता मौलाना अहमद रजा का। अभी तुमने ये कहा कि ज़ाब्ता मौलाना अहमद रजा का है, अभी तुमने ये बात कही है। अभी तुमने ये बात कही है, झूठ बोला। मैंने कहा हुसामुल हरमैन में लिखा है। हुसामुल हरमैन में लिखा है, तो हुसामुल हरमैन में लिखा है मौलाना अहमद रजा पे कुफ्री, ये उसूल मौलाना अहमद रजा। एक मिनट, काफिर को काफिर ना कहे, यानी काफिर के कुफ्र में शक करे, वही तो मैं तुझसे पूछा। पहले बता के पहले बात सुन के ये बता कि उसूल अगर मौलाना अहमद रजा का है, अगर ये मौलाना उसूल अगर मौलाना अहमद रजा का है, तो इस फतवे के तहत मौलाना अहमद रजा खान काफिर होता है या नहीं होता है? बता मुझे। एक बात बता, ये जो उसूल तूने पेश किया काफिर होता है? अरे जाहिल मुतलक, जब ये मौलाना अहमद रजा का उसूल रहेगा जब ना काफिर हो। पहले तो तू उसूल को पहले बताना कि ये उसूल मौलाना अहमद रजा का है या नहीं, पहले इसका तू बात बताना। हुसामुल हरमैन में लिखा है। हुसामुल हरमैन में क्या? हुसामुल हरमैन देख, पहली बात तो ये कि हम तेरे मौलवियों को न जाने की तरीके गाली दे सकते हैं, तरीके से बात कर। एक मिनट खान, रशीद अहमद का नहीं होगा। एक मिनट खान का है रशीदिया में, एक मिनट खान का है रशीदिया में। ये कह रहा है कि जब ये फतवा, जब ये ज़ाब्ता मौलवी अहमद रजा बरेलवी का होता तब काफिर होते, क्योंकि उनका ये ज़ाब्ता मौलवी अहमद रजा बरेलवी काफिर नहीं है। अल्लाह अकबर। देखिए, शरीयत इस्लाम का हुक्म रजा खानी नहीं मानते हैं। ये देवबंदी अपने दावे को साबित नहीं कर पाया, और तहकीक के बाद इसके मौलवी ने मुसलमान मान लिया, और ये इधर उधर की बात कर रहा है। अरे जाहिल मुतलक ये बता दे कि जब थानवी को मौलाना अहमद रजा ने काफिर कहा, तो जब अगर उसके ऊपर कुफ्र साबित नहीं जा रहा था, तो वो कुफ्र पलट करके मौलाना अहमद रजा की तरफ जा रहा था कि नहीं जा रहा था? उसके बाद भी मौलाना थानवी ने मौलाना अहमद रजा को मुसलमान माना। ये तहकीक उसके सामने हुई थी कि जो काफिर है, वो एक काफिर पे जो मुसलमान कहा, एक काफिर को जिसने मुसलमान कहा वो मुसलमान रहेगा, वो भी काफिर है। तो मौलाना अहमद रजा खान खुद अपने जो है हुसामुल हरमैन में दर्ज करता दावा साबित कर दे, दावा साबित कर दे, मुनाज़रा कर दे, दावा साबित कर, दावा साबित हो गया। दावा साबित नहीं कर पाया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अरे मोहतरम सामीन को फैसला कर लेंगे, साबित कर दिया, सामीन फैसला कर लेंगे, सामीन से छोड़ दे, सामीन से छोड़ दे। अभी तक तू दावा साबित नहीं कर सका, फिर उसको साबित कर दिया। दावा साबित नहीं कर पाया और मुनाज़रा करने चलेगा। अरे दावा साबित, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तू गया मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली अरवारे मदहरिया, अपने अकाबरीन के नजदीक मौलाना अहमद रजा को काफिर साबित करता, जबकि न कर सका। अपने ही उसूल में मौलवी थानवी जो है काफिर हुआ, हदीस शरीफ की रोशनी में मौलवी थानवी काफिर हुआ। उसकी तरफ खुद ये उसने या तो अपने कुफ्र का इकरार किया, और अगर अपने कुफ्र का इकरार नहीं किया, अगर कुफ्र जो है लौट रहा था मौलाना अहमद रजा, मौलाना अहमद रजा की तरफ, तो फिर उसके बाद घाट उतर गया। फिर उसके बाद मुसलमान लिखा। मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, काफिर हुआ या नहीं हुआ, इतना बता मुझे। किसमें?
काफिर हुआ या नहीं हुआ? अपने मौलवी की दिफा क्यों नहीं कर रहा है? जो तेरा मौजू है, क्यों रहा है? मैं भाग तो तू भागा है, मौलाना अब्दुल बारी की तरफ। पहले ये कौन फैसला कर लेगी कि मौजू किसका था? पहले मैंने कहा मौजू यही था कि मौलवी अहमद रजा बरेलवी अपने उसूल से काफिर है। तो तू अपने अकाबरीन का वकील है, तू अपने अकाबरीन का वकील है ना, तेरे अकाबरीन तेरे वकील है ना, जो मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने तेरे अकाबरीन उसको मुसलमान कहते हैं, तो काफिर कैसे कह सकता है? आजाबी फकद कफर, जो काफिर के उसूल किसका है? वो भी काफिर है। किसका है? ये उसूल मौलवी अहमद रजा खन्नास ने हुसामुल हरमैन में दर्ज किया है। हम तेरे मौलवियों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि गाली बहुत गंदी गंदी दे सकता हूँ, सलीके से बात कर। अरे गाली मैं क्या बताऊँ? क्या खानकाहे रशीदिया में लिवाकत आम थी, मैं इसको साफ करूँ? अल्लाह को तेरे खानकाहे रशीदिया में लिवाकत आम थी, मैं इसको मैं क्या बताऊँ? खानकाहे रशीदिया में तेरे मौलवी ने लिवाकत आम किया था, मैं इसको बोलूँ? मैं इसको पढ़ूँ? जाहिलों की तरह मत बोल, जाहिलों की तरह मत बात कर। तू पहले अपना दावा साबित कर दे, अपने मौलवियों के नजदीक दावा साबित कर दे, मौलाना अहमद रजा की तकफीर का दावा साबित कर दे। अगर दावा साबित नहीं कर पाता है तो मौलवी झूठा, तेरा मतलब झूठा, तेरे मुल्क झूठा, ये बात मान लेना। अब्दुल बारी फिरंगी महली के सामने पेश किया तो कहा कि मुझे इसमें कुफ्र नजर नहीं आता, तो हुसामुल हरमैन के फतवे से मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली चल एक काम कर, सुनो मेरी पहले बात मुकम्मल हो जाने दे, फिर मौलाना अब्दुल बारी के मौजू पे मुनाज़रा करते हैं। मुकम्मल बात वाजे होने दे, ठीक है? सुना, जब हुसामुल हरमैन के फतवे से मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली काफिर हो चुके थे, ठीक है, अब मौलवी अहमद रजा बरेलवी खामोश हो गया। क्या खामोश हो गया और आखिर तक जो है दोस्ती को बरकरार रखा। अब जब मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली काफिर हो चुके थे, अब उससे दोस्ती भी रहा है मौलवी अहमद रजा, और जो है उनसे प्यार मोहब्बत की बातें भी कर रहा है, उनको मुसलमान भी समझ रहा। तो अब बताओ, हुसामुल हरमैन फतवे से मौलवी अहमद रजा बरेलवी काफिर हुआ या नहीं हुआ? इतना मुझे जवाब दे। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, सुन, ये जो तूने मौलवी काफिर हुआ या नहीं हुआ, इतना पहले जवाब दे। फिरंगी महली की जो तूने बात कही, देख फिर तू चिल्लाएगा, हम जानते हैं कि तेरे पास अब कोई जवाब नहीं है, चिल्लाएगा, जवाब देना, चिल्लाएगा, जवाब तेरे पास जवाब नहीं, इसलिए जवाब कर रहा है, अपने जवाब तेरे पास नहीं है, इसलिए मौलाना थानवी को जब मौलाना अहमद रजा ने काफिर कहा, मैं भी तुमसे बहुत आसान सवाल पूछा, तूने कहा कि तहकीक के बाद आप पहले ये साबित करो कि हमारे मौलाना थानवी ने तहकीक के बाद कहा मौलाना अहमद रजा को काफिर नहीं कहा, ये तुमने कहा। फिर उसके बाद मैंने हदीस शरीफ के हवाले से ये बताया कि मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने मौलवी थानवी पे कुफ्र का हुक्म लगाया। अगर उस पे कुफ्र साबित नहीं आ रहा था, इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भागने से बात नहीं होगी। मौलाना अहमद रजा पे जाता ना, उसके बाद ही मौलाना अहमद रजा को उसने मुसलमान माना। इसका मतलब अपने कुफ्र का इकरार किया, इसका मतलब अपने कुफ्र का इकरार किया, नंबर एक। और अगर अपने कुफ्र का इकरार नहीं किया, अगर अपने आप को मुसलमान समझता रहा, तो वो कुफ्र पलट करके मौलाना अहमद रजा की तरफ जा रहा था। उसके बावजूद भी उसने मुसलमान कहा। क्यों एक काफिर को मुसलमान कहना, ये तहकीक के बाद तो मुसलमान कह रहा है, ये बता। अरे मलफूजात तेरे यहाँ हुज्जत ही नहीं है, मलफूजात तेरे यहाँ, तो ये दावा तू कर देना कि हमारे इस अकाबिर की बात, जो हमारे अकाबिर ने ये बात की, ये झूठ है। मैं उसके बाद उसको साबित करूंगा कि ये मलफूजात ही में है या और कहीं नहीं है। हमने कहा मैं क्या करूँ, उसको क्यों बनाता है? इस कॉल को कह देना कि ये कॉल जो है झूठ है, ये कॉल झूठा है, क्यों बनाता है? जब कह देना हुज्जत ही नहीं है, कॉल कह दो कि इस कॉल में झूठ है, कह दो ना कि हमारे हम इसको नहीं मानते हैं, तो फिर मैं दूसरी किताब से, मैं यही चीज दूसरी किताब से भी साबित करूंगा ना, मैं यही चीज दूसरी किताब से भी साबित करूंगा ना, मैं दूसरी किताबों से भी साबित, तो इनकार करके हमारे अकाबिर का कॉल नहीं है, आग टू रहा है, आग टू रहा है। हदीस शरीफ की रोशनी में, हदीस शरीफ की, चल ऐसा करना, चल ऐसा कर, तू नेट पे डाल, मैं भी नेट पे डालता हूँ, कौन फैसला करेगी कौन भागा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कौन ही फैसला करेगी, कौन ही फैसला करेगी? रजा बरेलवी अपने उसूल से ये बता कि उसके उसूल से तेरे अकाबिर तेरे लिए हुज्जत नहीं है क्या? तेरे अकाबिर तेरे लिए हुज्जत नहीं है? तेरे अकाबिर तेरे लिए हुज्जत नहीं है? मुसलमान कहा है, मुसलमान कहा है, मुसलमान कहा है, मुसलमान कहा है। जब मौलाना अहमद रजा खान ने जब थानवी को काफिर कह दिया, तो या तो फिर अपने उसने कुफ्र का इकरार कर लिया, अगर कुफ्र का इकरार नहीं किया, अगर वो मुसलमान रहा तो कुफ्र लौट करके मौलाना अहमद रजा की तरफ जाना, तो उसके बाद मुसलमान माना। ये हदीस शरीफ की रोशनी में काफिर हो रहा है, से काफिर है, ये अलग मौजू है। ये तो हदीस शरीफ की रोशनी में तेरा मौजू है। मैं तो ये पहला सवाल तो यही था ना, ये इसके बाद क्या आया, इसके बाद में मौलाना अब्दुल बारी की बात आई।
जिसके बाद मौलाना अब्दुल बारी की बात आई थी, इंशाअल्लाह बताऊंगा मैं तुझे। तो इसी से पहले बात हो रही थी, पहले तो क्या ये सिर्फ तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि तो ये कह देना कि ये बात झूठी है, कहते हैं कि ये बात झूठी है, दूसरी किताबों से साबित करूंगा, कहते ये बात झूठी है, उसको दलील बनाना मैं क्या कह रहा हूँ, कह दो कि कहते ये कि बात झूठी है, ये बात झूठी है, मैं दूसरी किताबों से भी इसका हवाला दूंगा, तेरे भैया ये हवाला और इस बात का, तो इस बात का इनकार कर देना कि ये बात झूठी है जो मौलवी थानवी ने कही है, तो मैं मलफूजात जो है मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फिर ये कौन जो फैसला कर मलफूज को लेगी? पेश कर रहा है तो तेरे मसलक में हुज्जत मैं नहीं क्या है। कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो मलफूज ही में नहीं, ये कौन मलफूज ही में नहीं है, और भी दीगर जगहों पे तो इसका इनकार तो करो। मलफूज ही तो नकल किया हुआ है, मैंने तो मलफूज पढ़ा ना, तो इसका इनकार कर कि ये बात झूठी है। तेरे यहाँ साबित कर तो पहले। मैं मलफूज को हुज्जत नहीं मानता। चल तू एक बात बता, जो चीज हुज्जत नहीं है उसको दलील बनाना एक बात बता कि जब हुज्जत नहीं उसको दलील बनाना कैसा है? मतलब कैसा जाहिल है, तो इसका इनकार तो नहीं है उसको दलील बनाना कैसा है? ये बात झूठी है। तू कहना कि ये तेरे मौलवी थानवी की जो बात है ये झूठी है, तो इसका इनकार करना। जो चीज हुज्जत नहीं तो इसका इनकार भी नहीं कर रहा, तो इसका इनकार भी नहीं कर रहा है, इसका इनकार भी नहीं कर रहा हमारे मौलवी, इसका भी इनकार नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना मेरा नाम बरेलवी है, गले में छछुंदर अटका दूंगा, अरे गले में छछुंदर तेरे गले में अटका दूंगा। मैं कहा ना मेरा नाम बरेलवी है, तेरे गले में अटक चुकी है। अभी तक तेरा दावा नहीं साबित हो पाया रे, तेरा दावा साबित नहीं हो पाया। मैं क्या थरथरा रहा हूँ, मैं ये कौन फैसला करेगी, कौन फैसला करेगी? जब तेरे मौलवी थानवी ने उसको मुसलमान माना तो इसका मतलब है कि अपने कुफ्र का इकरार खुद ही कर लिया। कितना बड़ा जाहिल है कि जो है उसको तू हकीमुल उम्मत कह रहा है, मलफूज को हुज्जत नहीं कर रहा है, मलफूज तेरे मसलक में हुज्जत नहीं। तो ये मलफूज तो इसका इनकार करना कि ये कौन झूठा है, इसका इनकार करना तो मैं दूसरी किताबों से का बागी है, दूसरी किताबों से इसका सबूत झूठा है। ये कौन झूठा है ये तू बता ना, तो मैं दूसरी किताबों से इसका हवाला दूंगा। बोलना तुफैल सुन, चल बता। तुमने जो मलफूज को दलील बनाकर पेश किया है, जो चीज हुज्जत ने उसको मैं क्या बता रहा हूँ कि ये तू इसका इनकार कर दे कि ये कौल हमारे मौलवी का नहीं है, तो इसका इनकार कर दे कि ये कौल हमारे मौलवी का नहीं, हम दूसरी किताब से भी साबित करेंगे। तो कहना अरे जो चीज हुज्जत ने उसको दलील बनाना जाहिल मुतलक मैं इस कौल की बात कर रहा हूँ, ये कौल झूठा है या सच्चा है, ये इसका तो क्यों नहीं, इसका तो नहीं एतराफ कर रहा है, उसको दलील बनाना कैसा है? कर सकता है, इसलिए क्या एतराफ करेगा तो तेरी पोल खुल जाएगी, और इसी में मौलवी थानवी ने मौलाना अहमद को मुसलमान मान दिया, हदीस शरीफ की रोशनी में अपने कुफ्र का इकरार भी कर लिया। खत्म कर चल भाग जा। बरेलवियों के सामने हमने हमेशा देखा है, बरेलवियों के सामने देवबंदी भेड़ियों को थरथराते देखा है। देख थरथरा करके भाग रहा है, जवाब नहीं दे पाया, मैंने कहा तेरे गले में छछुंदर अटका दूंगा, मैं बरेलवी हूँ। तू अभी कौल मेरी ही नकल करेगा, छछुंदर वाली बात भी मेरी ही कौल नकल। तेरे मौलवियों ने आज तक यही किया है कि बरेलवियों के कौल को नकल किया है। मैंने जो है मौलवी अहमद रजा बरेलवी उसके तू अपने बता दे, अपना बता देना कि तेरे मौलवियों के, अगर तू अपना उसूल पेश करता है तो इसका इनकार करके अकादरी हमारे मौलवी थानवी तेरे अकादरी